The world is already working towards eliminating sound and noise pollution through electric vehicles. The question is that how can we do it in Pakistan with all these hurdles like expensive electric cars, few charging stations and lack of technical knowledge. But for an answer, MG has taken its first step of introducing an affordable compact electric SUV in Pakistan. Assalamualaikum everyone, this is Ali Khan. You're watching AutoNotch and here is the first look review of the MG ZS EV. So if it's an electric vehicle, it is not necessary that it must look like an alien. It has the same grille which is also being offered in the MG HS and supported with a chrome lining with a platinum black finish in between. And it also has this MG push where this MG ZS EV will be charged. It has these LED headlamps which is based on the London Eye design. It reflects the heritage of the British culture. बोनेट के अंदर देखें तो ये दो स्लीक लाइंस आ रही हैं जो कि बम्पर के अंदर फेड हो रही हैं. नीचे की तरफ को ये एक लिप दिया गया है दैट इज इन ग्रे कलर जो कि बैटरी को कूल डाउन करने में हेल्प करेगा. एंड देयर इज एन अदर अपर लिप विच इज ऑल्सो इन ग्रे कलर और जो कि फॉग लैम्प्स की जगह पे जाके अटैच हो रहा है. नाउ मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल. It has this beautiful character line starting from the front fender and which fades away into the C-pillar. And there is another one which fades away into the rear fender. Rims are based on Dutch windmills which is also a part of the British heritage. यहाँ पे आप देखें तो आपको brush aluminium molding मिलेगी with claddings running all across the car. It has this beautiful roof rails which is being matched with this brushed aluminium with a massive panoramic sunroof. Moving on to the back profile, it looks elegant. दो LED back lamps दिए गए हैं. नीचे जो बम्पर है that is very well designed जिसके अंदर पार्किंग सेंसर्स हैं. ये सिल्वर लिप दी गई है जो कि फ्रंट डिजाइन मैच कर रही है. ब्रश्ड एल्युमिनियम की लिप है यहाँ पे दोनों बम्पर्स की जगहों पे और यहाँ पे पिछले फॉग लैम्प्स एंड रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं. MG ZS और EV की बैजिंग बहुत प्रोमिनेंट है with an MG push in between to open the trunk. Now talking about the trunk, it has a lot of space being a compact SUV जहाँ पे आप शायद 4 बड़े बैग्स कैरी कर पाएं. We have a trunk separator and handle to push the trunk down. So ये था exterior. Let's talk about the interior जहाँ हम अपना ज़्यादातर टाइम गुजारेंगे and let's see what this MG ZS EV has to offer. So the first thing first, you will notice that the interior is a two-tone color. One is silver and the other one is black. The dashboard is in soft finish. You have that beautiful stitching on the dashboard. Seats की हम बात करें तो that is leather material with white stitching on it. बीच का जो console है, this has both stitchings, white and black, and looks premium. The console is a bit small, but you are being offered with 2 cup holders in this shutter. यहाँ पे console की बात करें तो this is brushed plastic, which look cool with these silver dials on the AC controls and on the gear knob. And उसके बाद हम चेक करें तो ये पूरा जो कंसोल है that is in piano black finish. इसको सपोर्ट किया गया है with this frame of the infotainment screen. You can find a part of it in the handle as well. हैंडल जो है उसके राइट साइड पे आपके पास वॉइस कमांड के कंट्रोल हैं एंड टू नेविगेट द TFT स्क्रीन उसके कंट्रोल दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन के कंट्रोल्स मिलते हैं. Okay, so carrying on with the piano black finish, you will find these turbine style air vents which looks premium in the interior of this MG ZS. Let's talk about the light controls. You have these beautiful LED lights with DRLs जहाँ पे आप उसको ऑटो पे भी कर सकते हैं. It has leveling of lights. उसके नीचे हम देखें तो हमारे पास क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस हैं and that is very convenient. So let's talk about the drive experience. स्टिक के पीछे आपको मिलेगा पुश स्टार्ट बटन. जब पैडल दबा के आप कन्वेंशनली जो पुश स्टार्ट का यूजेज होता है, आप पुश स्टार्ट का बटन दबाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी.
गियर नॉब की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ड्राइव मोड, न्यूट्रल एंड रिवर्स। राइट साइड पे जब आप रोटेट करेंगे इस डायल को तो ये चला जाएगा ड्राइव मोड के अंदर, जबकि अगर आप सेंटर में रखेंगे तो ये होगा न्यूट्रल, बट लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे तो हो जाएगा रिवर्स। बीच में दिया गया है पार्किंग का बटन, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये चली जाएगी पार्किंग के ऊपर। गियर कंसोल के ऊपर आपके पास 3 बटन हैं। लेट्स डिस्कस द मोड बटन फर्स्ट विच इज ऑन द लेफ्ट साइड। मोड के अंदर आप देखेंगे तो आपके पास 3 मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड एंड इको मोड। बीच में आप देखेंगे तो आपके पास कर्स का बटन है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम, जो कि जब आप पैर लिफ्ट करते हैं एक्सेलरेटर से तो गाड़ी जो पावर जनरेट करती है उससे बैटरी को चार्ज किया जाता है। राइट साइड पे सबसे आपके पास है बैटरी का ऑप्शन, जो कि आपको दिखाएगा कि आपकी बैटरी कितनी देर चलने वाली है, कितने किलोमीटर चलने वाली है, एंड दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू नो एंड टू पुट दिस ईवी ऑन चार्ज। अब हम बात करते हैं इसके मीटर की। राइट साइड पे यू आर गेटिंग अ डायल जिसमें आपको यही कर्व सिस्टम की रीजनरेशन पावर को डिफाइन किया गया है एंड पावर यूजेज बताई गई है जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं कि वो कितनी पावर यूज कर रही है। लेफ्ट साइड पे आपके पास स्पीडोमीटर है। बीच में द डिस्प्ले यू विल गेट विल इंडिकेट दैट हाउ मेनी डोर्स आर ओपन ऑफ द कार, गाड़ी किस मोड पे चल रही है एंड विच लेवल ऑफ कर्स यू आर ड्राइविंग। देयर आर 3 कर्स ड्राइविंग मोड। जब आप एक्सीलरेटर छोड़ेंगे कर्स सिस्टम होने की वजह से तो ये गाड़ी सेल्फ ब्रेकिंग भी करेगी एंड यू विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि ब्रेक लाइट्स नहीं जलती हैं और पीछे से कोई गाड़ी ब्रेक लाइट्स ना जलने की सूरत में आपके करीब आ सकती है और इमरजेंसी ब्रेकिंग भी कर सकती है। नाउ लेट्स पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द ड्राइव प्लेजर, स्टेबिलिटी एंड द इंजन पावर। स्टीयरिंग ग्रिपी है और इसका अच्छा सीटिंग पोस्चर आपको ये फील करवाएगा कि आपकी गाड़ी की ड्राइव पर पूरा कंट्रोल है। कर्व सिस्टम का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है गाड़ी की ड्राइव पर, बट यू विल गेट यूज्ड टू इट एज यू विल ड्राइव इट मोर। सस्पेंशन स्टिफ है और अच्छा रिएक्ट करता है, स्पेशली व्हेन यू आर ओवरटेकिंग एट अ हायर स्पीड। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है और गाड़ी जंप्स एंड बम्प्स पे भी काफ़ी अच्छा रिएक्ट करती है। क्योंकि ये MG ZS का इलेक्ट्रिक वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन की जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है और इसको कपल किया गया है एक कंटिन्यूअस गियर बॉक्स के साथ। इलेक्ट्रिक मोटर की टॉर्क काफ़ी ज़्यादा है और आप एक्सेलरेटर प्रेस करते ही इसे फ़ौरन फील कर सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि आप एक सिंगल चार्ज के अंदर इस ZS EV के ऊपर 300+ किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। So now we'll show you the engine room of this MG ZS EV और आपको दिखाएंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी कहाँ पे लगी हुई है। बैटरी वैसे जो है वो इसकी गाड़ी के नीचे लगी हुई है एंड दैट इज व्हाई दिस कार इज सो स्टिफ, just to give the minimum body roll to the overall chassis of the car and to its battery as well. So this is the motor. ये जो है वो 12 वोल्ट बैटरी है जो कि माइनर चीज़ों को पावर दे रही है, जैसे आपका कंप्रेसर हो गया और पावर स्टीयरिंग हो गया। इसकी जो मेन बैटरी है जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रही है दैट इज़ बीनीथ द चैसी और वो ये वहाँ पे फिट हुई है, तो उसको आप गाड़ी के नीचे से देख सकते हैं। विल ट्राई टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। So after all the hurdles in Pakistani market, this MG ZS EV will be the first ever electric vehicle to be assembled in Pakistan. We hope that more electric vehicles will be offered in Pakistan shortly and we'll be seeing charging stations all across Pakistan soon. So this was the MG ZS EV first look review. To know more about this MG ZS EV, we'll soon be bringing more videos of the local assembled unit. Until then, take care. Allah Hafiz. Wear your seat belts.